پہلے بات کریں گے ملتان میں اسموک کا راز، دوسری جانب SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی، رات کے شہر کے چلتے تھیٹرز پر ماسک کی خلاف ورزی، تھیٹرز کی ٹائمنگ رات 1 بجے سے تبدیل نہ کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی بالکل، اسموک کے حوالے سے اگر SOPs کی بات کرتے چلیں تو SOPs کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا، لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن میں آج سے جو ریسٹورنٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ بھی 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ لیکن شہر ملتان کی اگر ہم بات کرتے چلیں یا انٹرٹینمنٹ سائٹ کی بات کرتے چلیں تو ان کے لیے کوئی نیا قانون یا نیا کوئی ضابطہ اخلاق جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا۔ جو تھیٹر پرانے ٹائم کے مطابق چلتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی چل رہے ہیں، لیکن تھیٹرز کو کیا نئے ٹائم پر شفٹ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے کہ انٹرٹینمنٹ کی سائٹ پر ہم موجود ہیں، اچھا طریقہ ہے، ہونا بھی چاہیے انٹرٹینمنٹ، لیکن جہاں تمام چیزوں پر SOPs قائم کی جا رہی ہیں، تھیٹرز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ ایک اچھا وہ ہے کہ خوشیاں بانٹتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اگر SOPs کو دیکھا جائے تو حکومت جو ہوٹلز وغیرہ، جو شاپس ہیں، بازار ہیں، اگر ان کو بند کروایا جا رہا ہے تو وہ اپنی جو نظر ثانی ہے وہ اس طرف بھی کریں، کیونکہ یہاں بھی جو ہے وہ معمول بہت زیادہ لوگوں کی تعداد میں آتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ اس پر بھی تھوڑی اپنی نظر ڈالیں، ٹائمنگ پر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالیں۔ لیکن SOPs کی اگر ہم بات کرتے چلیں کہ تو کیا SOPs پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ تھیٹر کے اندر تمام ہی لوگ جو ہیں وہ بغیر ماسک کے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ماسک کو یقینی بنانا بھی جہاں ذمہ داری ہے انتظامیہ کی، وہیں پر تھیٹر مالکان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ماسک کو یقینی بنائیں۔ SOPs جو ہیں ان کو کم از کم جو ہے وہ فالو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ شکریہ وسیم شہزاد۔ جنوبی پنجاب مسلسل اسموک کی لپیٹ میں، شہر شہر معمولات زندگی متاثر، فضائی آلودگی میں لودھرا پاکستان بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا، اسموک اور فوگ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ مظفر گڑھ شہر میں مسلسل 10 روز سے اسموک کا راج، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 215 پوائنٹس ریکارڈ، فضائی آلودگی کی وجہ سے دمہ اور سانس کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، شہر میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگی۔ انتظامیہ کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ رجحان میں اسموک کی وجہ سے انڈس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کی اسموک میں سفر سے گریز کرنے کی ہدایت، جبکہ طبی ماہرین نے ماسک لازمی استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا۔ فقیر والی شہر بھی اسموک اور فوگ کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہے، مسافروں کو شہر سے باہر جانے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیور بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ جلال پور پیروالا میں اسموک کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس بھی متحرک ہے، ٹریفک پولیس نے شہریوں کو آگاہی دی اور مختلف مقامات پر شہروں میں ماسک بھی تقسیم کیے۔ ادھر لودھرا ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 860 پوائنٹ ریکارڈ، اسموک کے باعث شہری نزلہ کھانسی سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا، شہریوں نے حفاظتی تدابیر کو سنجیدہ نہ لیا، اسموک کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خیرپور ٹامے والی میں بھی اسموک شدت اختیار کر گئی، جبکہ تلمبے میں بھی اسموک اور دھند کا راج، تلمبہ، موسنوال اور گردنوا میں نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور فوگ لائٹ کا استعمال لازمی کریں۔ اوج شریف اور گردنوا میں بھی شدید اسموک کے باعث حد نگاہ 100 سے 150 میٹر رہ گئی، جس کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ترنڈا محمد پورہ میں اسموک کے باعث قومی شاہراہ پر ٹریفک سوسرابی کا شکار، اسموک سے شہری کھانسی، دمے سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کو اسموک نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لودھرا شہر میں ایئر کوالٹی کی شرح بھی سنگین ہوگی۔ لودھرا ایئر کوالٹی انڈیکس 860 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کا پہلا اور ملتان 460 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا فضائی آلودہ ترین شہر قرار۔ ملتان میں بڑھتی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ فضائی آلودگی میں لودھرا کا پاکستان بھر میں پہلا نمبر، ملتان 460 AQI کے ساتھ ملک کا تیسرا فضائی آلودہ شہر بن گیا۔ ملتان میں خانوار روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 360، کنٹونمنٹ 336 اور بوسن روڈ کا علاقہ 561 پوائنٹس ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں کی فضا زہر آلود ہے۔ رجحان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 441، بہاولپور 223، خانوال 216، ڈیرہ غازی خان کا 208 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر اولیہ میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل، مارکیٹس 4 بجے بند کرنے کا حکم۔ نئی پابندیوں سے ریسٹورنٹ مالکان بھی پریشان، کہتے ہیں کہ کاروبار مشکلات کا سامنا ہے، حکومت کاروبار کا دورانیہ بڑھائے۔ کسٹمر کو ریلیف، چلو کم کچھ ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، 4 بجے تک کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ بند کر دیں، اس کے بعد ٹیک اوے ہے، ٹیک اوے 8 بجے بند کر دیں، تو اتنے لوگوں کی روزی وابستہ ہے اس ریسٹورنٹ سے، کتنے لوگوں کا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر کے چولہے بند ہو رہے ہیں۔
स्मोक के बायस शहरी खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमती अदारों की स्मोक का बायस बनने वाले अवामिल के खिलाफ कार्रवाइयां तो जारी हैं, मगर जगह जगह पर स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हेड मोहम्मद वाला रोड पर फसलों की बकात जलाए जाने लगी, जिससे खतरनाक धुआं फजा में शामिल हो रहा है। फसल करिए ना इन्होंने काख ना खराबी इको न जलावन और न जलावन और इन्हें खास तौर क्या करेंगे धुआं उठी ना पिए बीमारी पैदा होनी पई है। अफसरों को भी चाहिए उन्होंने को रोके न जलावन। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की है, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से स्मोक का बायस बनने वाले अवामिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुहेब बुखारी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र पाबंदियां मजीद सख्त। स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दुश्मन बन चुका, इससे बचना है तो इंतजामिया का साथ देना होगा। कमिश्नर मुल्तान बनी खान ने शहरियों को क्या पैगाम दिया, जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत ने स्मोक की रोकथाम के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का इस हवाले से कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दुश्मन बन चुका है। शहरी बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकले, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, बच्चों को घर के कमरों में ठहराएं, मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे बेसिक स्टेप है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से कम कोशिश करें गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और पानी का इस्तेमाल करें जो कि एक वैसे ही आपकी बॉडी में आपका वाटर लेवल जो है वो आपके फ्लूइड लेवल ठीक हो तो उसमें आप वैसे ही इंसान के लिए बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कमिश्नर मुल्तान का मजीद कहना था कि शहरी स्मोक के खतरात की वजह से हुकूमती पाबंदियों पर अमल दरामद करें। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। ईंटों के भट्टे, फर्नेस इंडस्ट्रीज के कामों पर मुल्तान में बंदिश है। ताजिर 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें। रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे। 4 से 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जो हमारी मेडिकल स्टोर्स हैं, हमारी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, हमारे फ्यूल स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, हमारे कोई बेकरीज हैं, वेजिटेबल फ्रूट शॉप्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं इस 8 बजे से, और उनको अगले 1-1.5 घंटे तक उसका इजाज़त है, जो खाने पीने की जगह हैं। तो वो हमने बड़ी क्लियरली उसको स्पेल आउट कर दिया हुआ है ताकि उसमें डिफ्रेंसिएशन हो। बट उसके अलावा जितनी कमर्शियल एक्टिविटी है वो सारी की सारी हम 8 बजे बंद करवाएंगे। मुल्तान में तमाम अस्पतालों की OPDs रात 8 बजे तक काम करेंगी। रेस्क्यू 1122 स्मोक मुतासरा मरीजों की मुआवनत करेगा। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप, आटा चक्की, तंदूरों को इस्तिस्ना होगा। शहरियों से इन पाबंदियों पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त की गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, रूही, मुल्तान। और हुकूमत पंजाब का स्मोक की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम का ऐलान। भट्टाखिच के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ तामीराती कामों पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने शहर ओलिया में स्मोक के बाइस सूरत हाल खराब होने पर तामीराती कामों पर पाबंदी लगा दी। तमाम तामीराती काम बंद कर दिए गए, जिसके बाइस तामीराती कामों से मुंसलिक अफरादों के घरों का चूल्हा जड़ना मुश्किल हो गया। ईंटों का कारोबार करने वालों का कहना है कि एक हफ्ते में ईंट का रेट 32,000 से 42,000 रुपए तक पहुंच गया है। ईंटें बनाने वाले भट्टे मनमाने रेट पर ईंटें फरोख्त कर रहे हैं। 32,000 33,000 रेट था, अब भट्टे बंद करने की वजह से ना 42-43,000 रुपये रेट चला गया ईंट का। वो भी मिल भी नहीं रही। पीछे वाले भट्टे वाले कहते हैं कि ईंट है भी नहीं, मिन्नत तरले से ले रहे हैं। एक ट्राली जाम 2-3 देते थे, अब एक से गुजारा करवा रहे हैं। तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से मजदूर तबके का कहना था कि हुकूमत तामीराती कामों पर पाबंदी लगाकर मजदूरों का माशी कत्ल कर रही है। अशियाए खुर्दोनोश पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार मजदूर कैसे घर चलाएंगे? कमा के जाते हैं और हमारा राशन पानी चलता है, हम कहाँ जाएंगे? ये जो है आप बंद कर रहे हैं, हमारे को इधर राशन पानी दें, हम फिर कहाँ जाएंगे? ये चौक पे जो मजदूर बैठे रहते हैं ना रोजी के लिए, ये कहाँ जाएंगे? ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऊपर सर्दी आ रही है तो बच्चों के कपड़े भी लेने हैं और गिंदोले भी लेने हैं, अपनी ज़रूरत भी होती है। ये 2 महीने क्या 3 महीने काम बंद क्या हो रहा है? ये 2 दिन बंद हो जाए हम किधर जाएंगे? दादी वाला जो करता है वो आपको पता ही है ना,
ताजी वाला हर बंदा करता है तो ले जाता है। वो फैक्ट्री वाले अगर बंद करें ये क्या ये मजदूरी वाले बगाम बंद नहीं हो सकता है भैया, नहीं कहाँ से खाएंगे। हुकूमत तामीराती कामों पर पाबंदी लगाने के बजाय स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करे तो स्मोक में कमी आ सकती है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुकूमत से क्लीन एयर एक्ट को मुतारिफ करवाने का मुतालबा। सदर मियां बख्तावर तनवीर का कहना था कि स्मोक से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां बख्तावर तनवीर शेख का कहना था कि स्मोक से सनती सरगर्मियां और कारोबारी मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सनतों को खाम माल की फराहमी और मसनूआत की तरसील में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को स्मोक पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए। कचरा और कोयला जलाने पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। मुल्तान में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन तर्जमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना था कि भीख मांगते 2 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में 10 साला यूसुफ, 12 साला मुजाहिद शामिल हैं। बच्चों को नॉर्दर्न बाईपास और लारी अड्डे से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों को लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। डेरा गाजी खान डिवीजन में गंदम के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, नहरी पानी 20 नवंबर के बाद दस्तयाब नहीं होगा। दूसरी तरफ इंतजामिया फसलों की बाकियां जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुतहरिक है। डीजी खान डिवीजन में नहरी पानी से गंदम काश्त करने वाले किसान हो जाएं होशियार। महकमा ज़राअत के मुताबिक 20 नवंबर के बाद गंदम के काश्त के लिए नहरी पानी दस्तयाब नहीं होगा। जबकि डायरेक्टर ज़राअत गुलाम मोहम्मद गुज़दार कहते हैं डिवीजन भर में 22,94,000 एकड़ पर गंदम के काश्त का हदफ है, जिसमें से 67% रकबे पर गंदम काश्त की जा चुकी है। हमारी इस वक्त गंदम की काश्त तकरीबन 67% जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी 15,38,000 एकड़ पे, जबकि हदफ हमारा है 22,94,000 और ये हदफ इंशाल्लाह हम आसानी से हासिल कर लेंगे क्योंकि गंदम की काश्त जोरों पे है। स्मोक की रोकथाम के हवाले से गुलाम मोहम्मद गुज़दार का कहना था कि फसलों की बाकियात जलाकर स्मोक की वजह बनने वाले 33 किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं, जबकि 3,15,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। जिन जिम्मेदारों ने अपनी फसल की बाकियात को आग लगाई है उनके ऊपर 33 FIR हम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं और 3.25 लाख का फाइन इम्पोज हो चुका है उनके ऊपर। इसके अलावा नहरी पानी जो है ना 20 नवंबर तक अवेलेबल है और काश्त का बेहतरीन टाइम है। मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द अपनी काश्त मुकम्मल कर लें ताकि बेहतरीन पैदावार आ सके। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का मजीद कहना था कि गंदम की काश्त का हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। दुनियापुर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली। शहर के अक्सर गली मोहल्लों में गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार। म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहरियों और राहगीरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। दुनियापुर में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना नाअहली ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। शहर की अक्सर सड़कों पर गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं। गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज और फैजान मदीना रोड पर ट्रैफिक का बहुत रश होता है। देही इलाकों के लोग इसी सड़क से शहर आते हैं। स्मोक और धुंध की वजह से राहगीरों को कुछ नजर नहीं आता। अक्सर मोटरसाइकिल सवार और राहगीर अंधेरे के बायस इन गटरों में गिरकर हाथ पांव तुड़वा बैठे। कुछ लोग जान की बाजी भी हार गए। अहले इलाका और राहगीर कहते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम रोज यहाँ से 10 से 12 हादसे से देखते हैं। जो बाइक वाला टकरा के गिर जाता है, गाड़ी यहाँ से गुजरती है, ये जो गटर का ढक्कन है ये तकरीबन 10 फुट तक उछल के वापस गिरा है। 2-3 हादसे अभी हो गए। इसको एक बार रिपेयर करके गए हैं, फिर यही हाल हो गया। वो रिपेयर करते हैं, नीचे से खाली ईंटें बिछा के ऊपर मसाला डाल के चले जाते हैं। हमारी यही दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। जी, वैसे धुंध पड़ रही है तो आजकल तो वैसे ही नजर नहीं आता, तो ये हादसा काफी हो रहे हैं। बस यही दरख्वास्त की जाती है कि उसको मुरम्मत किया जाए। राहगीरों और अहले इलाका ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर गट्ठों के नए ढक्कन लगाए जाए ताकि अवाम की जिंदगियां महफूज हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। स्मोक से भट्टाखिश की इंडस्ट्री शदीद मुतासिर। भट्टाखिश बंद होने से ईंटों के रेट भी बढ़ गए। अव्वल दर्जा ईंट के फी ट्राली रेट में 2,000 रुपए का इजाफा। 2 हफ्ते पहले 9,000 रुपए ट्राली का रेट बढ़कर 11,000 हो गया।
स्मोक माहौल और इंसानी सेहत के बाद शहरियों की मुआशियात के लिए भी खतरा बन गई। बहावलपुर में स्मोक के बायस भट्टा खिश्त बंद होने से ईंटों के रेट भी बढ़ गए। फी ट्राली रेट 9,000 से बढ़कर 11,000 तक पहुंच गया। खरीदार न होने से परेशान ट्राली मालकान कहते हैं इंतजामिया के क्रैकडाउन के बायस भट्टों से नई ईंट बनना बंद हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। इंतजामिया के क्रैकडाउन में अब तक 30 से ज्यादा भट्टे मसमार किए जा चुके हैं, जबकि बेशतर जिगजैग की खिलाफ वर्जी पर बंद हैं। ट्राली मालकन का कहना था कि ज्यादातर भट्टा खिश्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर न चलने से बंद हुए। भट्टा खिश्त न चले तो ईंट का स्टॉक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद रेट मजीद बढ़कर फी ट्राली 13,000 से 15,000 तक होने का इम्कान है। मसला ये है कि पिछले हफ्ते से भट्टे बंद हो गए हैं। पिछले हफ्ते ईंट का रेट था 9500, अभी 11,000 12,000 अभी ईंट बेच रहे हैं। और उसके बाद इधर गाहक है नहीं, रेट सुनता है गाहक वापस चला जाता है। पीछे से भट्टे बंद हैं, स्मोक ऊपर से भर रही है सर्दी की वजह से ना। ट्राली मालकान का मजीद कहना था कि पूरा दिन ग्राहकों के इंतजार में खड़े रहते हैं। ग्राहक ईंट की ट्राली 11,000 में लेने को तैयार नहीं। महंगी ईंट की वजह से कारोबार ठप हो गया है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।